Yeah, ma'am, I think we can start. Sure, sir. I hope the screen is visible, Robin ma'am. Yeah, visible. Right, sir. Yes, Thank ma'am. you. So good morning, dear learners. Today's session, it marks day 5 of the FDP titled A Paradigm Shift in Teaching, Learning and Evaluation. I, Dr. Leenu Anand, on behalf of Sri Aurobindo College of Commerce and Management, Ludhiana, welcome you all. I had used word learner intentionally, primarily to bring all the participants on equal footing, that is all our learners, and to align this FDP with the shared vision of our worthy principal, Professor Dr. Vishal Kumar. I take it to be a privilege to introduce our resource person for the day, Dr. Bishla, to the August gathering. Dr. Deepak Bishla, working as System Administrator in IT Department at Dr. B.R. Ambedkar University, Delhi, is PhD in Technology Effectiveness and Intervention in Higher Education. He has been utilizing technology in teaching since 2012, both at graduate and postgraduate levels. His areas of interests are e-learning, blended learning, MOOCs, cybersecurity, cyber law, university-wide academic cloud e-governance, that is ERP planning, setup, customization, and execution. He has more than 11 years of technical implementation, teaching, research, and consultancy experience. He is a member of National Cyber Defense Research Center and author of a number of articles on different aspects of database, cybersecurity, university automation, e-governance, etc., which have been published in various research journals. He has also participated in few international forums. He is also IT external expert and examiner in many universities and colleges. I'd like to invite worthy principal Professor Dr. Vishal Kumar to formally welcome Dr. Bishla. Thank you, Minu ma'am. Leenu ma'am. Distinguished resource person of today's session, Dr. Deepak Bishla, System Administrator, Dr. B.R. Ambedkar University, Delhi. Faculty members and dear participants, a very good morning again to all of you. Dr. Bishla, as Dr. Leenu said, is a renowned academician, eminent scholar, and a very popular instructor. His number of resource lectures are available on YouTube. He is expert in digital learning education and has conducted sessions in almost every part of India. On behalf of Shri Aurobindo College of Commerce and Management, Ludhiana, I welcome you, sir, on the fifth day of this online FTP on a paradigm shift in teaching, learning, and evaluation. Dr. Bishla will take session on designing MOOCs through Moodle. Everyone knows very well that Moodle is a very popular LMS and many people have created their MOOCs on Moodle. I'm sure today's resource person will leave no stone unturned to teach all nitty-gritties of this popular platform because he is the master of handling e-learning productivity tools. Rather, I would say he is a bouquet of different kind of flowers, as Dr. Leenu has read his CV or resume, right? So I once again welcome you, sir, and hope that your session will enrich the learning of all our participants. Thank you so much, Dr. Leenu. Over to you, ma'am. Thank you, sir. So, Okay, with a hope that today's session will offer a platter full of food for your cognitive health, with the blessings of Goddess Saraswati and our guiding lights, Sri Aurobindo and the Mother, let's begin our today's journey to be more digitally equipped with Dr. Bishla, who would be sharing his knowledge on the topic Designing MOOCs through Moodle. Over to you, Dr. Bishla. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your beautiful words, and thank you so much for the invitation to me here. So it's really my pleasure. I'm here with you to deliver my uh,
sessions. So I'm just sharing my experience, nothing in new in this. And so whatever I achieved in my career practically, I'm just going to share with you. That's it. I'm not going to teach you. You are already a teacher. I'm just going to sharing you my practical experience. I'm a practitioner person, तो theory की बातें मैं कम करूंगा, practical बातें ज्यादा करूंगा. Correct. So let's start the session now. So I can see here how many participants we are, sir. I can see only 10 total. No. We have almost, including the faculty of this college, 88 to 90 participants. Okay, I think I cannot see on this. Yeah. Okay. Yeah. Okay, no issue. Right. So, okay, let me share my screen. Mm. Yeah. Yep. Okay. So the topic of the day is development of MOOC. So that we are calling with the several names: online teaching learning activity, modern teaching tools and technique, e-learning, digital learning. Right. With the so many different names, we are knowing this development of MOOC, massive open online courses. Correct. So let's start from the here. How we can develop our online course using the free open source software. See, I am fan of free open source software thing, free open source courseware, free open education resources, free course, free open source software, everything. So I'm fan of free open source software thing. So whatever tools and technique I'm going to share with you during these two sessions, everything is freely available. I'm not going to discuss anything which is available on the paid mode. Without spending a single rupee, we can develop our online course. We can design our content. We can design our platforms. We can transact the content. So many things we can do it without spending a single rupee. We need just one thing: our laptop and mobile with a good internet connectivity. That's it. Because if we are talking about online, that means internet is the first thing, correct? So our laptop and mobile both should connected with a good internet connectivity. After that, we need not to buy a single rupee. We need not to spend a single rupee. Everything is freely available. Right? I will let you know the exact meaning of free. Sometimes we are doing a lot of mistakes in the name of free. So I will let you know that as well. So, but a lot of things I'm going to discuss with you. So let's see how in these two sessions how much I am able to deliverable to you. So let's see on that one. Okay. So when we start our journey from face-to-face teaching to the online teaching, we have to shift so many things. जो हम फेस टू फेस में पढ़ाते हैं और जो हम ऑनलाइन में पढ़ाते हैं, we have to follow certain different approach. बिल्कुल डिफरेंट. फेस टू फेस में डिफरेंट अप्रोच फॉलो करते हैं एंड ऑनलाइन में डिफरेंट अप्रोच फॉलो करते हैं. राइट. So from last 2 years, I assume everyone is already engaging in this online teaching learning activity. आप already busy हैं उसमें, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं कि how you are doing online teaching learning activity. So now what I am doing, I am just add something new कि जब आप ऑनलाइन कोर्स रन कर रहे हैं उसमें और एडिशन करके और नया करके उसको और बेहतर कैसे किया जाए. ऑनलाइन तो आप कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं. लेट्स ऐड समथिंग न्यू इन दैट. तो नया करने के लिए दैट फॉर दैट वी नीड टू फॉलो दिस ऑनलाइन सिस्टम इन ए वेरी सिस्टमैटिक वे. और वो सिस्टमैटिक वे अप्रोच क्या है? जस्ट फॉलो दिस इन ए सिस्टमैटिक अप्रोच. हियर इट इज. That is the systematic approach. Using that one, we can achieve a online course very easily. So ये this is a single slide. हम इस slide पर एक हफ्ता डिस्कस कर सकते हैं, 5 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 2 दिन, 2 वीक, जैसे आप चाहें. हम सिर्फ इस सिंगल स्लाइड पर हम डिस्कस कर सकते हैं. Because everything is in it here. सब कुछ है इसमें. एक सिस्टमैटिक अप्रोच हमें जब ऑनलाइन कोर्स की फॉलो करनी है तो वो क्या है? ओके.
ऑनलाइन कोर्स से मुझे एक चीज और याद आती है. आई जस्ट बिफोर आई स्टार्ट these points, I want to share one more thing. I remember, actually, I am associated with this online MOOCs from last 10-12 years. बहुत समय से हम इस पर काम कर रहे हैं. We have a very dedicated team and we all are working hardly on this online teaching learning activity. और पिछले 10-12 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं. I remember few year back, 5-6 year back, 4 year back, जब हम इस ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी की बात करते थे, और आई कैन से बिफोर दिस पैंडेमिक, जब भी हम कहीं लेक्चर डिलीवर करते थे और इस ऑनलाइन कोर्सेज की बात करते थे, देन जनरली पार्टिसिपेंट्स हमसे कहते थे, व्हाई वी नीड टू डू दिस. जरूरत ही क्या है, जब फेस टू फेस में सब बढ़िया काम चल रहा है तो जरूरत ही क्या है, राइट. एंड वी थॉट कि ये चेंज आएगा ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग का, बट उसमें टाइम लगेगा. इट मे बी नेक्स्ट 5-6 ईयर, 10 ईयर, बट इन दिस पैंडेमिक वो टाइम कुछ जल्दी ही आ गया. जैसे ही ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ, देन एवरीवन इज आस्किंग अस हाउ टू डू इट. द जर्नी फ्रॉम व्हाई टू हाउ सडनली चेंज हो गई, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस पैंडेमिक में, कि हम फेस टू फेस से ऑनलाइन में जाने की जरूरत क्या है. तो उसका आंसर सबको अपने आप मिल गया, व्हाई वी नीड ए ऑनलाइन टीचिंग, राइट. बेसिकली ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक एड ऑन टीचिंग, एक सपोर्ट, फेस टू फेस टीचिंग को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई थी. इट्स नेवर ए रिप्लेसमेंट ऑफ द फेस टू फेस टीचिंग. कभी नहीं हो सकती रिप्लेसमेंट. इट्स जस्ट ए एड ऑन टूल इन द टीचिंग टू इनहेंस द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी. दैट्स इट. जो हम फेस टू फेस क्लासरूम्स में हैं वो आज भी हैं, हमेशा रहेगा. दैट विल फॉर एवर, करेक्ट. ऑनलाइन टीचिंग just a add-on, just a, I can say, supportive tool for the teachers, कि अपनी टीचिंग को और इम्प्रूव किया जा सके, बच्चों से और ज्यादा इंटरेक्ट किया जा सकते. वाई शुड आई बाउंड फॉर 1 आवर ओनली, एक क्लास में ही क्यों रहूं. आई कैन इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट फॉर 24 आवर्स. सो दैट इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विल हेल्प अस, करेक्ट. सो जब मैं ऑनलाइन में अपने आप को शिफ्ट करता हूँ टीचिंग के लिए, देन आई हैव टू फॉलो ए मेरे सिस्टमेटिक वे. यू नो, टेक्नोलॉजी is like a double-edged knife. आप शायद लास्ट 2 ईयर से इस ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी को करने के लिए सिर्फ यही समझ रहे होंगे, हाउ टू यूज इट, क्या यूज करना है, कैसे करना है, दैट्स इट. बट आई थिंक रेयरली you talked about the second side of the technology, which we call as a cyber awareness, cyber security. वो बहुत जरूरी है. I said technology is a double एज नाइफ. दोनों पहलू को समझना हमें बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. यू नो, अगर आप अपने आप को अभी एक कंपेयर करें, बिफोर पैंडेमिक आप टेक्नोलॉजी कितना यूज करते थे? एवरेज टाइम 4 to 5 आवर बिफोर पैंडेमिक. बट आफ्टर पैंडेमिक टेक्नोलॉजी कितना यूज करता हो? इट ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर इन ए डे. आज का एग्जांपल ले लीजिए, आप 10 बजे लैपटॉप के सामने बैठे हैं और शाम के 7-6 बजे तक आप कंटिन्यूअसली टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, लैपटॉप, मोबाइल, कंटिन्यूअसली, राइट. तो इन पैंडेमिक में वी आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी मोर देन अर्लियर वी आर यूजिंग, राइट. डबल टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं. तो अगर हम इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ गए हैं, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड दी टेक्नोलॉजी अवेयरनेस एज वेल, कि हमें क्या यूज करना चाहिए, हम क्या क्या गलतियां करते हैं जब हम ऑनलाइन टीचिंग में मूव करते हैं, और हम छोटी छोटी क्या क्या गलतियां करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, कि क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए, जो हम अननोइंगली कई बार करते भी हैं, करेक्ट. ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट स्टेप इट हियर, कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए जब हम ऑनलाइन टीचिंग की तरफ मूव करते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज content collection. Content collection here mean to say collect whatever available on the internet. You know, internet is full of resources. बहुत कुछ है इंटरनेट पे, बहुत कुछ है. हम एक चीज सर्च करते हैं and we are getting lot of thing, we are getting lot of thing in a result. आपके शायद OER पे सेशन हो चुके होंगे, तो OER की अंडरस्टैंडिंग
is the first thing when we move ourselves to the online teaching learning activity. OER का actual meaning क्या है कि open educational resources सबसे पहला step क्यों माना जाता है? Because now we are running a online course और जो भी content हम use कर रहे हैं, that my content or someone else content, everything is now in a digital mode. और कोई भी content जब हम digital mode में अपलोड या शेयर कर रहे हैं, वी शुड हैव ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट कंटेंट लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर. उसका लाइसेंस क्या है? that is the first thing we should have understanding on the licensing structure. जो भी हम कंटेंट यूज करने जा रहे हैं, चाहे वो मैंने कंटेंट खुद से डेवलप किया, इधर आई यूज समवन एल्स कंटेंट, वो कॉपीराइट है या वो OER है, that is the first thing we have to understand. Copyright is very sensitive matter. बहुत sensitive matter है copyright, बहुत sensitive matter है. Okay, so उसकी understanding हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है, correct? So understanding of the copyright. So that's why the first thing is the OER, open educational resources. उसको समझना जरूरी है. I hope everyone is familiar with the OER, so I'm not going to start the OER here because OER itself है 2 session, so मैं उस पर time spend ना करके आगे move करूँगा. So I assume everyone is familiar with the OER. अगर आपको OER से अभी familiarity नहीं है तो I suggest you please read the OER first. Open educational resources बहुत जरूरी है. जब हम ऑनलाइन टीचिंग की तरफ मूव करते हैं, सबसे पहला स्टेप है to understand the licensing structure. वो copyright, no right reserved, all right reserved, वो क्या है वो, we have to understand so that we can use these content. बहुत important है OER, content collection. Okay, so here I assume everyone is familiar with the OER. तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन. Okay, please switch on your cameras so that फील आए कि हाँ मैं किसी से बात कर रहा हूँ, अदरवाइज लगता है मैं अपने लैपटॉप से ही खुद से ही बातें किया जा रहा हूँ. आई थिंक सेम थिंग यू आर फीलिंग जब आप लाइव लेक्चर्स लेते हैं, तो कोई सामने तो हो जिससे हम बात कर रहे हैं. गुड वन, राइट. ओके, सो OER से रिलेटेड में एक क्वेश्चन आप सबसे, दैट सेशन शुड बी डिस्कशन मोड. ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही बोले जा रहा हूँ, आप भी प्लीज इनपुट दीजिए और डिस्कस करना चाहिए. OER से रिलेटेड एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन जानना चाहता हूँ. लेट्स से मुझे कोई कंटेंट मिला, वो कॉपीराइट कंटेंट है, सपोज कुछ गूगल से या यूट्यूब वीडियो लगा लीजिए, कोई मैं वीडियो सर्च की मैंने यूट्यूब पे, वो कॉपीराइट कंटेंट है. आई नो कि वो 100% कॉपीराइट है. सो माय सिंपल क्वेश्चन इज, क्या मैं उस कॉपीराइट कंटेंट को अपने ऑनलाइन कोर्स में यूज कर सकता हूँ? यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स और अनम्यूट करके बात भी कर सकते हैं. क्या मैं उस कॉपीराइट कंटेंट को अपने ऑनलाइन कोर्स में यूज कर सकता हूँ? दैट इज सिंपल क्वेश्चन. Answers are coming up in the chat box also. Yeah, I can see chat box. No, yes, please. Okay, I can see maximum of you say no. 3 आंसर आए मेरे पास अभी तक. Say no for no. Yes by reference. One is है yes by reference. Okay. Yes भी आया मेरे पास, but giving the reference, I think as reference, maybe with citation reference. Okay, I think yes as a reference, with reference, by reference. Okay, so here mixed answers I can see. Some say no, some say yes, but with a condition. Yes, with a condition. With reference, yes, acknowledge the creators by citing, citations, reference. Okay. चलिए, तो मैं इसको भी क्लियर कर दूं आपको कि आंसर क्या है और हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं. सी, अगर कोई कंटेंट कॉपीराइट है, आई कैन यूज दैट कंटेंट. द क्वेश्चन इज, आंसर इज यस, यूज. अब यस अगर मैं कह रहा हूं कि आई कैन यूज ए कॉपीराइट कंटेंट, देन OER का मतलब क्या रह जाता है फिर?
अगर मैं कॉपीराइट कंटेंट यूज कर सकता हूं तो OER का तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर OER क्यों पढ़ाया जा रहा है, OER को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है, OER कहाँ गया? द डिफरेंस, सिंपल डिफरेंस समझिए द बिटवीन कॉपीराइट एंड OER. See, if I am using any copyright content, I cannot use without the permission of the author. Number one. अगर author मुझे permission दे देता है, then I have to use as it is, no changes allowed. Now just ask a question yourself. मुझे आंसर की जरूरत नहीं है, अपने आप से पूछिए, क्या आपने अपने कैरियर में कभी किसी ऑथर से परमिशन लिया है कंटेंट को यूज करने का? आई नीड नॉट ए आंसर, राइट? क्या हमने कभी परमिशन लिया है? ओके, अब हम रेफरेंस की बात क्यों कर रहे हैं? अब OER क्या कहता है? यू कैन यूज एनी कंटेंट विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑथर. If any content available under OER, you can use any content without the permission of the author. And you can apply 5R framework: reuse, revise, remix, redistribute, retain. Which you cannot do with the copyright content. That is a simple difference between copyright and OER. Okay. अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ. कॉपीराइट को हम यूज कर रहे हैं विदाउट परमिशन, रेफरेंस देके काम, साइटेशन देके काम चला रहे हैं, राइट? इज दैट लीगल? As per the Copyright Act 1957, Article 52 says, if you are using any copyrighted material under fair use, हम फेयर डीलिंग भी उसे कई बार कहते हैं, फेयर यूज भी, दोनों वर्ड यूज करते हैं. सो इफ यू आर यूजिंग एनी कॉपीराइट कंटेंट अंडर फेयर यूज, देन इट्स नॉट ए इन्फ्रिजमेंट ऑफ द कॉपीराइट एक्ट. करेक्ट? नाउ अब फेयर यूज का मतलब क्या है? फेयर यूज का मतलब है इफ आई एम यूजिंग माय कंटेंट, एनी कॉपीराइट कंटेंट अंडर एकेडमिक एक्टिविटी और पर्सनल यूज. तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एकेडमिक एक्टिविटी कर रहे हैं. एकेडमिक एक्टिविटी डज नॉट मीन कि मैं किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा हूँ. कोचिंग सेंटर इज ए प्योरली कमर्शियल एक्टिविटी. इट्स 100% इन्फ्रिजमेंट ऑफ द कॉपीराइट एक्ट. बट वी आर डूइंग एकेडमिक एक्टिविटी, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग द जस्ट रेफरेंसिंग और हमारा काम चल जाता है. बट रिमेंबर, एक चीज ध्यान रखिएगा, आप रेफरेंसेस दे रहे हैं, ठीक है, still author have a right to ask you why you are using my material without my permission. उसके पास फिर भी ये राइट है. और उस समय अगर आप ये कहें कि नहीं, आई हैव ए प्रोविजन इन दी कॉपीराइट एक्ट और मैं उसको यूज कर सकते हैं, then it's not a sufficient answer. You have to give a proper justification. You have to prove yourself कि you are doing this under fair use. Simply article का नाम देके कहना कि I'm using it is not sufficient. You have to prove it. तो ओवरऑल आई मीन टू से कि कॉपीराइट बहुत सेंसिटिव मैटर है, बहुत सेंसिटिव मैटर है. जब भी हम ऑनलाइन टीचिंग की तरफ जाते हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि हम कंटेंट का लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर क्या है. बहुत जरूरी है समझना कंटेंट लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर. सो OER को पढ़ लीजिएगा. सो माय मेन मोटिव इज OER पे नहीं है अभी, अदरवाइज 2 सेशन ये OER पे ही चले जाएंगे. जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया एक OER का 5 मिनट मैंने आपको, राइट? सो OER बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस समझाने के लिए एक क्वेश्चन मैंने पुट अप किया था. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट थिंग. अब हम कंटेंट को कलेक्ट कर लिया. लेट्स से मैंने कंटेंट कहीं से भी कलेक्ट कर लिया. कंटेंट कलेक्शन के बाद नेक्स्ट इज कंटेंट डेवलपमेंट, कि मुझे अपना कंटेंट डेवलप करना है. यू कैन सी हियर कंटेंट डेवलपमेंट. और इन दिस वर्कशॉप आई अज्यूम आपने अपना कंटेंट डेवलप करना भी सीखा और आप कर भी रहे होंगे लास्ट 2 ईयर से. सो मैं अभी आपको ये बताने नहीं जा रहा कि कंटेंट डेवलप कैसे करते हैं. अब उसमें कुछ एड ऑन चीजें सीखते हैं. कंटेंट डेवलपमेंट यानी कि वीडियोस बनाना, पीपीटीज, पावर पॉइंट, वो सब हमारे पास होती हैं. द मेन इज कि हमें रिकॉर्डेड वीडियोस कैसे बनानी है. दैट वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर. जैसे कि वीडियो बनाना आप सब बना ही रहे होंगे और आई अज्यूम की लास्ट सेशंस में कुछ ना कुछ कंटेंट डेवलपमेंट के ऊपर हुआ है. आई हैव सीन द शेड्यूल कि आपने कुछ ना कुछ सीखा ही है कि वीडियोस को बनाते कैसे हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से. जैसे स्क्रीन कास्टिफाई, स्क्रीन कास्टोमैटिक, प्रेजेंटेशन ट्यूब, OBS, फ्री कैम, right? And active presenter, load of softwares we have.
काउंटिंग ही नहीं है जिनकी। एक सॉफ्टवेयर की लिस्ट आपको दिखाता हूँ जिनको यूज करके हम कंटेंट डेवलपमेंट कर सकते हैं। प्लीज इंश्योर योर माइक्स आर म्यूटेड। Please ensure your mics are muted. Okay, so lot of softwares I have. Using that softwares, we can develop the content. Just have a look on that software list. You can see the first slide of the few softwares. Using that, we can develop the content. Second slide of the few cloud application. Third slide of the few software. Fourth slide of the software. Fifth slide of the software. Sixth, seventh slide mobile apps. Eighth slide again mobile apps. 10 slide web conferencing tool, like right now we are connected via Microsoft Teams, so we have free open source alternate as well, like Jitsi, Big Blue Button. 11th slide freely available plagiarism checking tools. 12th slide reference management tool. जो अभी रेफरेंस की हम बात कर रहे थे, जब हम थीसिस रेफरेंसेस रिसर्च पेपर लिखते हैं और जो रेफरेंस अगर आप मैन्युअली लिखते हैं, you know how painful it is, but we can manage it on a single click using that tool like Mendeley. Wonderful tool, single click में सारी रेफरेंस रेडी हो जाती हैं, जिस मर्जी फॉर्मेट में ले लीजिए। So these are the tools जो हमारी ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी को बहुत आसान कर देती हैं। कंटेंट डेवलप करना हो किसी भी तरह का, तो ये सारे फ्री सॉफ्टवेयर हैं मेरे पास, जो मैंने अभी बहुत कम लिखे हैं। प्लीज इंश्योर योर माइक्स आर म्यूटेड। राइट, सो कंटेंट डेवलपमेंट में सबसे पहले हमें क्या कौन है जिसका माइक अनम्यूट नहीं है? एडमिन कैन चेक कि इसका माइक म्यूट नहीं है। वी आर गेटिंग डिस्टरबेंस हियर। Sir, I think he has muted yourself now. I muted all. Yes, I'm audible. Still, we are getting some disturbance. Please ensure your mics are muted. Okay, so अब हम बात कर रहे थे कि हमें अपना कंटेंट डेवलप करना है। प्लेटफॉर्म लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, उसकी हम बात करेंगे सबसे लास्ट में, बिकॉज हम प्लेटफॉर्म पर कोई भी कोर्स रन करने से पहले, जैसे कि द टाइटल ऑफ टुडे सेशन इज डिजाइनिंग मूव्स थ्रू मूडल। मूडल के थ्रू हम कोर्स लाइव करना चाहते हैं। सो मूडल पे क्यों जा रहे हैं वो भी हम देखेंगे। बट प्लेटफॉर्म, मूडल को हम प्लेटफॉर्म जैसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। सो बिफोर रीचिंग टू द प्लेटफॉर्म बहुत सारे प्रीलिमिनरी स्टेप्स हैं जिनको हमें अचीव करना बहुत जरूरी है। तो स्टफ रेडी होना बहुत जरूरी है जब तक हम प्लेटफॉर्म पर जाएं। डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पे अगर मैं स्टार्ट कर दूंगा तो यू विल बी कंफ्यूज कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। सो इट्स क्रिएट कंफ्यूजन। सो आई मीन सिस्टमेटिक वे में बात कर रहे हैं। सो वी विल मूव टू दी प्लेटफॉर्म एज वेल। सो नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। बट राइट नाउ वी विल सी कि बिफोर रीचिंग टू दी प्लेटफॉर्म हमें किन किन चीजों की जरूरत है। तो हेयर कंटेंट डेवलपमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप स्वयं की गाइडलाइन भी पढ़े, स्वयं की गाइडलाइन जो है डेवलपमेंट ऑफ मूव की गाइडलाइन, दे सेड कि आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स जब रन कर रहे हैं, एटलीस्ट योर 50% कोर्स शुड बी वीडियो लेक्चर। इफ यू गॉन थ्रू दिस 4 क्वाड्रेंट अप्रोच ऑफ द स्वयं, वो अप्रोच क्या कहती है? फर्स्ट अप्रोच सेड कि आपका e-tutorial, that is video lecture. Second approach says about e-content other than video lecture stuff, whatever I have my present PPT, downloaded material, research article, journals, whatever I have. So 50% is video lecture and other than is my lecture PPT etc. these things. So video recording is the most important part जब हम content development की बात करते हैं। अब वीडियो पावर प्रेजेंटेशन तो सबके पास है ही ऑलमोस्ट, हम वी कैन शेयर इट वेरी इजीली। बट वीडियो रिकॉर्डिंग एक ऐसा स्टेप है जिसमें हमें थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है।
तो वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए वी हैव लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर जिनको हम कहते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर। या एक और चीज है, यू कैन यूज इट वेब कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स, जैसे ये गूगल मीट, जूम, जिटसी, माइक्रोसॉफ्ट टीम। आप कोई भी वेब कॉन्फ्रेंसिंग टूल यूज कीजिए एंड स्टार्ट द रिकॉर्डिंग, करेक्ट, एंड योर लेक्चर विल बी रिकॉर्डेड। जैसे अभी वी आर इन लाइव इंटरेक्शन और रिकॉर्डिंग ऑन है, तो फाइनली क्या होगा, एक रिकॉर्डेड लेक्चर बन जाएगा। बट फॉर दैट यू नीड ए कॉन्टिन्यूस इंटरनेट कनेक्टिविटी, कॉन्टिन्यूस इंटरनेट कनेक्टिविटी। अगर उससे मुझे बाहर आना है तो देन आई हैव टू यूज सम फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। here you can see I have categorized a lot of software from that slide. स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर जैसे स्क्रीन कास्टिफाई, स्क्रीन कास्टोमैटिक, लूम, फ्री कैम, प्रेजेंटेशन ट्यूब, एक्टिव प्रेजेंटर, ओबीएस एंड सो मैनी, बहुत सारे हैं। So using these screen recording softwares, we can record our video lectures. We can record our video lectures. अब इतने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, इन सॉफ्टवेयर्स को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। हम जो भी सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं, किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, I divide it into two parts. One is free open source software, second is the cloud based software. अब इनमें डिफरेंस क्या है? क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर लाइक आप जीमेल यूज करते हैं, नो नीड टू डाउनलोड, इंस्टॉल, नथिंग, जस्ट लॉग इन किया, रजिस्टर किया और यूज कर रहे हैं, राइट? दैट इज ए एग्जांपल ऑफ द क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। अब बहुत सारी क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस हैं जो हमें डाउनलोड या इंस्टॉल कुछ नहीं करना पड़ता, जस्ट रजिस्टरिंग इट एंड यूजिंग इट, दैट इज द क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। एंड फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं वेयर वी आर गेटिंग द सोर्स कोड एक्चुअली फ्री। फ्री ओपन सोर्स में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग में ओपन शॉट वीडियो एडिटर, राइट, ओडासिटी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री ओपन सोर्स की कैटेगरी में आते हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं, विद सोर्स कोड वी कैन कस्टमाइज इट। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं देना चाहूंगा कि फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है। एक सिंपल सा एग्जांपल, देन यू विल अंडरस्टैंड कि दोनों में डिफरेंस क्या है और जो हम फ्री के नाम पर मिस्टेक करते हैं उसको कैसे दूर करें। एक एग्जांपल के तौर पर आई विल टेक एग्जांपल ऑफ लेट्स से केक। किसी शॉपकीपर ने एक केक बनाया और एडवर्टीजमेंट के लिए उसने क्या किया, 1 पीस ऑफ केक वो सबको फ्री में दे रहा है, राइट, फॉर द एडवर्टीजमेंट। तो एक पीस ऑफ केक मैंने लिया, आई एट इट, इट्स आई फाउंड वेरी टेस्टी, देन आई आस्क्ड कि एक पीस और दे दीजिए, देन शॉपकीपर सेड फॉर द सेकंड पीस यू नीड टू बाय, वो पैसे में मिलेगा, ये फ्री में नहीं है, फ्री में एक ही पीस है, करेक्ट। देन आई थॉट कि क्या मैं ये केक सेम केक घर पे बना सकता हूँ? देन आई रियलाइज कि मैं केक तो बना सकता हूँ बट सेम केक नहीं बना सकता। व्हाई? बिकॉज मेरे पास उस केक की रेसिपी नहीं है, राइट। डिफरेंट डिफरेंट काइंड का केक तो मैं जैसे चाहे बना लूं बट सेम नहीं बना सकता, बिकॉज उस पर्टिकुलर केक की रेसिपी मेरे पास नहीं है। अब मैं टेक्निकली इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो भी हम क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन यूज करते हैं, वी आर यूजिंग इट बेसिक वर्जन। जैसे जीमेल हम बेसिक वर्जन यूज करते हैं, वी हैव इन द बेसिक वर्जन ओनली 15 GB स्टोरेज। 15 GB स्टोरेज अगर फुल हो गया तो मुझे बाय करना पड़ेगा। जो भी क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन यूज करते हैं, वी आर यूजिंग बेसिक वर्जन। अगर हमें उससे अबाव जाना है, देन वी नीड टू बाय द एडवांस प्रो वर्जन्स, एंड वी कैन नॉट मेक द सेम प्रोडक्ट एट ऑन, बिकॉज हमारे पास उस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड नहीं है। रेसिपी मीन्स सोर्स कोड, एंड फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में मेरे पास सोर्स कोड होता है। तो अगर मेरे पास रेसिपी है तो मैं जैसे चाहे कस्टमाइज कर लूं, उसको मॉडिफाई कर लूं, करेक्ट। तो सिमिलरली फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मींस आई हैव दिस सोर्स कोड। अगर मेरे पास सोर्स कोड है तो मैं उसको जैसे चाहे मॉडिफाई कर सकता हूँ, रिवाइज कर सकता हूँ। जैसे कि मूडल
आई विल गेट इट विद दिस सोर्स कोड, उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। गूगल क्लासरूम क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट है, मैं उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। आई हैव टू यूजिंग एज इट इज, जैसा मुझे दे रहे हैं, आई हैव टू यूज एज इट इज। ओके, सो यू क्लियर द डिफरेंस फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड क्लाउड बेस्ड। ओके, फ्री ओपन सोर्स इज एक्चुअली फ्री, जो हम यूज कर रहे हैं अपनी ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी के लिए। ओके, उसको मैं अब एक साइड में रखता हूं। अब मैं क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट की बात करता हूं, सिर्फ क्लाउड बेस्ड की। अब क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट्स में जो भी बेसिक वर्जन हम यूज करते हैं, बेसिक वर्जन, वी थॉट इट्स फ्री। बेसिक वर्जन हमें लगता है कि हम फ्री में इसको यूज कर रहे हैं, बट नथिंग इज फ्री इन दिस साइबर वर्ल्ड। जो आपको लगता है कि आप फ्री में यूज कर रहे हैं, दैट एक्चुअली नॉट फ्री, एक्चुअली नॉट फ्री। फ्री की डेफिनेशन को समझाता हूं आपको। फ्री की डेफिनेशन क्या है? सिंपल, if you are not paying for the product, I repeat, if you are not paying for the product, that means you are the product. अब आप प्रोडक्ट कैसे हुए उसमें? हम तो बेसिक वर्जन। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक वी आर डूइंग इन ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी। जो हमें लगता है कि हम जस्ट रजिस्टर करेंगे, लॉगिन करेंगे, यूज ही तो किया और किया ही क्या है। नहीं, कोई भी क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट यूज करने के लिए यू हैव टू फर्स्ट डू दी रजिस्ट्रेशन, साइन अप, लॉगिन क्रिएट करना पड़ता है फर्स्ट टाइम। एंड यू माइट बी नोटिस कि मोस्ट ऑफ द साइट देयर आर ए ऑप्शन sign up via Facebook, sign up via Google, sign up via Microsoft, or like that. Lot of options we have. What does mean? When we are doing registration, means we are sharing our personal information to these sites. Personal information में क्या है? मेरा नाम, email ID, phone number, address, date of birth, right? This kind of thing, and that is very crucial thing. That is very important thing. You know, हम सोशल मीडिया को एक नाम से जानते हैं। सोशल मीडिया इज हेवन फॉर द साइबर क्रिमिनल्स। How it is heaven for the cyber criminals? Because a lot of personal informations are available on the social media, correct? And that mistake we are doing again and again here, कि जो हम registration करते हैं, we are doing our personal information there, and that is the cost we are paying. अब आपको लगेगा पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या कॉस्ट है, क्या हो जाएगा? लॉट ऑफ थिंग। अगर आप आज तक लगता है कुछ नहीं हुआ, तो आज तक आप लकी हैं। तो फ्यूचर में आप कब तक लकी रहोगे पता नहीं। तो उन चीजों से बचना है। कैसे? एक थर्ड ईमेल आईडी ओपन कर लीजिए, जस्ट फॉर ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी। क्रिएट कर लीजिए ईमेल आईडी, जितनी चाहें आप क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट यूज दैट थर्ड ईमेल आईडी फॉर दैट रजिस्ट्रेशन। Never use that your primary email ID which is already linked with your internet banking, और प्राइमरी सोर्स के लिए जो आप यूज करते हो, उस ईमेल आईडी को कभी मत यूज कीजिए इन थर्ड पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए। सेकंड, आपको लगता है कि मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा, जस्ट एंटर डमी मोबाइल नंबर 9999 समथिंग एंड प्रोसीड। इफ यू थिंक कि उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है एंड यू हैव टू एंटर ए करेक्ट मोबाइल नंबर, देन एवरीवन हैव अ ड्यूल सिम फोन। डोंट एंटर द मोबाइल नंबर which is linked with your internet bank. Enter the another number which is not linked with your internet banking. उस फोन को यूज करके ओटीपी लो एंड प्रोसीड करो। Why I am entering full name दीपक बिस्ला, मुझे क्यों लिखना है? मैं दीपक सिंह लिख दूं, दीपक कुमार लिख दूं, राइट? दीपक तो बहुत होंगे, बट सरनेम के साथ अगर आप जाएं तो शायद मैं डायरेक्ट मुझे अप्रोच करके गूगल पे सर्च कर पाएंगे। बट अगर आप सिर्फ दीपक लिखोगे तो पता नहीं कितने हैं, करेक्ट? तो व्हाई यू आर पुटिंग दिस इंफॉर्मेशन? सो फर्स्ट, जब भी आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, फ्री के नाम पर इस पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करना बंद कीजिए। दैट इज वेरी डेंजरस थिंग। सोशल मीडिया हो या कहीं पर भी हो, पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी मत शेयर करो, कभी मत शेयर करो। दैट इज ए वेरी बिग टिप फॉर यू एज ए साइबर अवेयरनेस। अगर आप साइबर अवेयरनेस की एक वीक की कंटिन्यूस वर्कशॉप लो या एक दिन का कोई लेक्चर लो, उसका क्रक्स क्या होगा वो आपको बता रहा हूँ। दैट इज द पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब उसको समझाने के लिए आप सीरीज ऑफ लेक्चर ले लीजिए, करेक्ट, वो अलग बात है, बट मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ कि पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना ही सबसे डेंजरस थिंग है। उसको कभी मत शेयर कीजिए। ट्राई टू आइडेंटिफाई दी साइट्स जहां पर आप रजिस्टर कर रहे हैं कि क्या वो जेन्युइन है,
इट्स लाइक अगर वो कोई गवर्नमेंट पोर्टल है, ऑफ कोर्स आई हैव टू पुट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। अगर कोई थर्ड पार्टी साइट्स है जो मैं ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी के लिए टेम्परेली यूज कर रहा हूँ, कुछ समय के बाद वो मुझे नहीं यूज करनी है, टेम्परेली है, नेवर डू दी रजिस्ट्रेशन विद दी जेन्युइन इंफॉर्मेशन। कभी मत कीजिए। उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए उस क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन को कि क्या मुझे जेन्युइन इंफॉर्मेशन डालनी है या नहीं। देन एंटर इट एंड देन प्रोसीड, यूज इट। वी हैव टू यूज टेक्नोलॉजी, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, करेक्ट, बट यूज इट इन ए सेफ वे, यूज इट इन ए सेफ। टेक्नोलॉजी आई सेड इज लाइक ए डबल एज नाइफ। डरना नहीं है, सावधानी के साथ यूज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी को समझना, उसको यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वो सारे स्टेप्स सब जानते हैं कि अपने आप को सेफ गार्ड कैसे करना है, वो सबको पता है। बैंक से ईमेल आती हैं, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी पे बहुत कुछ ज्ञान आता रहता है कि आपको अपने आप को सेफ गार्ड कैसे करना है, सबको पता है। पर प्रॉब्लम कहाँ है, हम फॉलो नहीं करते। एवरीवन नो कि मेरा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पासवर्ड टाइमली चेंज होना चाहिए, फ्रीक्वेंट इंटरवल पर किसी से शेयर नहीं करना है, मुझे एक ओटीपी शेयर नहीं करना है, सबको पता है, ये बेसिक चीजें हैं, सबको पता है। प्रॉब्लम ये है कि हम फॉलो नहीं करते। जस्ट फॉलो दिस थिंग एंड देन वी आर सेफ। इफ यू आर थिंक कि इस टेक्निकल वर्ड में कोई सॉफ्टवेयर, कोई एंटीवायरस, कुछ टूल में इंस्टॉल कर लूं और देन आई एम सेफ, नो, दैट इज योर, आई थिंक यू आर इन ए कंफ्यूजन। दुनिया में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, टूल्स नहीं है विच कैन सेफ गार्ड यू। सिर्फ एक ही चीज है जो आपको बचा सकती है, दैट इज अवेयरनेस। Only awareness can safeguard you. So be aware while you are using the technology. तो फ्री के नाम पर अपने आप को बचा के रखिए। डोंट यूज दिस पोर्टल्स, ऐसे पोर्टल्स पर इंफॉर्मेशन, जेन्युइन इंफॉर्मेशन ना दीजिए। जो फ्री के नाम पर जो आप गलती कर रहे हैं उसको थोड़ा सुधारने की कोशिश कीजिए, बहुत जरूरी है ये। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, उनको एक अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए एक एग्जांपल लिया था। मेन मोटिव इज हम, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन, बट आवर मेन मोटिव कि हमें वीडियो को डेवलप करना है। अब हम कंटेंट डेवलप करना है यूजिंग दी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की बहुत सारी कैटेगरी है, दैट वी अंडरस्टैंड। अब जब सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम वीडियो डेवलप कर रहे हैं, आई अज्यूम आप कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को लेकर कुछ ना कुछ तो डेवलप कर ही रहे हैं। आपने अपनी वीडियो लेक्चर्स बनाए भी होंगे कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को लेकर, लाइक आई हैव रिटन फ्यू ऑफ देम, कि जब आप वीडियोस बनाते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर को लेकर, एंड हियर डोंट आस्क मी कि कौन सा बेस्ट सॉफ्टवेयर है जिसको लेकर मैं वीडियो बनाऊं, बिकॉज ऑल आर इक्वली गुड। बेस्ट मीन टू से, if you are comfortable with the active presenter, that is best for you. If you are comfortable with OBS, that is best for you. If you are comfortable with FreeCam, that is best for you. Ultimately motive क्या है? Just to develop the video, just to develop the video, correct? अब वीडियो बनाते समय हम क्या मिस्टेक्स करते हैं उनकी भी बात करते हैं। वीडियो, जब हम वीडियो लेक्चर्स बना रहे होते हैं, ओके, वीडियो लेक्चर्स बनाते समय कोई भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो या लाइव सेशन में हो, ओके, अभी अभी कुछ पॉइंट्स में आपको काउंट करवाऊंगा और उन पॉइंट्स में से आपको खुद सेल्फ इवेल्युएट कीजिएगा कि आप अपने आप को कितने पॉइंट्स देंगे। सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, स्विच ऑन योर कैमरा। अभी कुछ पॉइंट्स काउंट करते हैं, राइट, एंड देन आई लेट यू नो द फ्यू थिंग व्हिच यू मस्ट इंश्योर जब भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो। ओके, 5 स्टेप्स हैं जो मेजरली हम मिस्टेक्स करते हैं एट लाइव रिकॉर्डिंग के दौरान। ओके, अब आप ऑनलाइन हैं सारे, आपके कैमरास भी ऑन हैं। आई एम गिविंग यू 5 स्टेप्स एंड इवेल्युएट योरसेल्फ। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स आप अपने आप को देंगे? पहली चीज, जब भी हम लाइव सेशन में हो या जब भी हम कैमरा के सामने हो, लाइव रिकॉर्डिंग हो या ऑफलाइन रिकॉर्डिंग कर रहे हो, लेक्चर रिकॉर्डिंग पे हो, कुछ भी, फर्स्ट थिंग, your camera should be on your eye level. First thing, your camera should be on your eye level.
करेक्ट। अपने आप को इवेल्युएट करते रहिएगा कितने मार्क्स लेंगे आप 5 में से। मैं अभी 1 पे आया हूँ, 4 मार्क्स और भी बाकी हैं। ओके, so first thing, your camera should be on eye level. Second, your room should be soundproof. Your room should be soundproof to avoid the extra noise. इसके आगे रीजन भी बताऊंगा डिटेल्ड में मैं आपको, अभी तो आपको सिर्फ 5 पॉइंट बता रहा हूं मैं। तो सेकंड, रूम शुड बी साउंडप्रूफ। थर्ड, लाइट ऑन योर फेस फ्रॉम द फ्रंट साइड, नॉट फ्रॉम द बैक साइड। अदरवाइज क्या होता है, बैक साइड से वो कैमरे का रिफ्लेक्ट करती है और आपका चेहरा एकदम डार्क नजर आता है। लाइट ऑन योर फेस फ्रॉम द फ्रंट साइड, नॉट फ्रॉम द बैक साइड। 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ, माइक शुड बी क्लोजर टू योर माउथ। आपका लैपटॉप हो सकता है 2 मीटर दूर रखा हो, आप ब्लूटूथ, वायर्ड माइक कुछ भी यूज कीजिए, माइक शुड बी क्लोजर टू योर माउथ। फिफ्थ, वेरी स्मॉल बट वेरी इफेक्टिव, बहुत बढ़िया, जब भी आप कैमरे के सामने हो, योर बैकग्राउंड शुड बी क्लियर। योर बैकग्राउंड शुड बी क्लियर। अब 5 पॉइंट में से अपने आप को इवेल्युएट कर लीजिए, आपने कितने पॉइंट्स दिए। 5 ऑफ 5 भी है कोई, करेक्ट? I can see नीनू मैम, आई थिंक 5 आउट ऑफ 5 हैं, मुझे लग रहा है वो पूरे एथिक्स फॉलो कर रही हैं शायद, मुझे लग रहा है, राइट? तो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। कैमरा शुड बी ऑन आई लेवल, रूम शुड बी साउंड प्रूफ, राइट, लाइट ऑन योर फेस, माइक शुड बी क्लोजर टू योर माउथ, बैकग्राउंड शुड बी क्लियर। अब इससे बेनिफिट्स क्या होंगे, ऐसा करने से बेनिफिट्स क्या होंगे? यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर क्रिएटिंग द वीडियो वी नीड टू एडिट द वीडियो। बहुत बार जरूरत पड़ती है, वी नीड टू एडिट द वीडियो। इफ वी आर फॉलोइंग दीज 5 एथिक्स, वी कैन रिड्यूस द टास्क ऑफ वीडियो एडिटिंग। यू नो, एक्स्ट्रा वॉइस आ जाती है, उसको मुझे रिड्यूस करना, उसको मुझे कट करना पड़ता है। बैकग्राउंड में कुछ एक्स्ट्रा आ गया, उस वीडियो को मुझे कट करना पड़ता है, राइट? तो अगर ये 5 एथिक्स हम फॉलो करते हैं तो वी कैन रिड्यूस द वीडियो एडिटिंग टास्क। वीडियो एडिटिंग टास्क को हम रिड्यूस कर सकते हैं, हमें जरूरत नहीं होगी वीडियो को एडिट करने की। तो जस्ट 5 एथिक्स, फॉलो दिस 5 एथिक्स टू प्रिपेयर ए क्वालिटी वीडियो। वीडियो तो आप बना ही रहे हैं, मुझे नहीं लगता मुझे एक डेमो दिखाने की जरूरत है कि वीडियो कैसे बनाते हैं, वो आप बना रहे हैं। सो उस पर टाइम बचाते हुए हम और इम्पोर्टेंट बातों की तरफ डिस्कशन करते हैं, राइट? सो जस्ट फॉलो दिस 5 एथिक्स व्हाइल यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। अगर आजकल तो वो ब्लर योर बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा ऑप्शन आता है, अगर आप बैकग्राउंड नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो ब्लर योर बैकग्राउंड, दैट इज गुड ऑप्शन नाउडेज वी हैव, राइट? तो यूज दैट थिंग एंड क्रिएट ए वंडरफुल वीडियो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई कैन से कि ये एथिक्स हैं जब भी हम कैमरे पे सामने होते हैं, फॉलो द एथिक्स। अदरवाइज यू नो, आपने भी अब तो हैप्चुअल हो चुके हैं आप और मैं, स्टूडेंट को कहते कहते म्यूट योर माइक, म्यूट योर माइक, राइट? म्यूट योर माइक, हम सब हैप्चुअल हो चुके हैं ये कहते कहते स्टूडेंट्स को, राइट? ओके, सो दीज आर एथिक्स जो हमें फॉलो करने चाहिए। सेकंड थिंग, जब भी आप लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स बना रहे हो, don't prepare a long video in one go. Let's say I have 1 hour content. Split it in part 1, 2, 3, 4. 10 से 15 मिनट, 10 to 15 only. एक वीडियो जो होगा आपका, that is 10 to 15 minute only. Never make a long video in one go. There is a reason behind that, solid reason behind that, why I'm saying. Nowadays students have very less attention period. 10 मिनट के बाद उनका अटेंशन गया। अब लेट्स से मैंने 30 मिनट का वीडियो बनाया था, तो मेरे लास्ट के 20 मिनट इज टोटली वेस्ट। यू नो, एक वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगते हैं, बहुत एफर्ट लगते हैं एक वीडियो बनाने के लिए। लाइट इज गॉन इन माय रूम, होप आई एम विजिबल। पावर नहीं है मेरे रूम में अभी, सो होप आई एम विजिबल। ओके, सो वीडियो जब आप बनाते हैं, कम बैक, या ग्रेट। सो जब वीडियो आप बनाते हैं 10 to 15 मिनट, वाई आई एम सेइंग 10 to 15 मिनट, सी स्टूडेंट का अटेंशन पीरियड जो यूटिलाइज करना है अगर हमें, तो उसको छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड कर दीजिए। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल स्टडी है। फ्यू ईयर बैक एक स्टडी हुआ था, साइकोलॉजिकल स्टडी,
द स्टडी सेज, वो रिसर्च में कहा गया, ड्यू टू द एक्सेस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी समटाइम वी आर losing our attention period. Excess use of technology, what I mean to say excess use, see, excess use of everything is harmful. Excess food is harmful, excess exercise is harmful, excess use of technology is also harmful, जिसको हम डिटॉक्स भी कहते हैं. डिटॉक्स जनरली बच्चों में ज्यादा होता है, हमारा आप और हम में नहीं. बच्चों में वो फोन की लत लग जाना, गेम खेलना, ये सब उसको डिटॉक्स भी कहा जाता है, राइट? So, excess use of technology is also harmful. So, in that study, they gave a wonderful example. They said, "Ki just try to remember those days when you were in school, 25 year back. जब हम आप और हम स्कूल में थे, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जितनी आज है. Just try to remember those days. और जब हम घर पर अपना होमवर्क करते हैं और कोई डाउट हमारे माइंड में आता तो हम क्या करते थे? We ask this doubt next day to our teacher. आजकल क्या होता है, वेन एवर एनी डाउट केम इन आवर माइंड, यू एंड मी स्टूडेंट ऑल, वी आर ऑल इक्वल नाउ, कोई भी डाउट माइंड में आता है, वी आर डूइंग इमीडिएटली गूगल. कोई भी डाउट माइंड में आया, इमीडिएटली गूगल कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा. नाउ व्हेन वी आर सर्चिंग समथिंग ऑन इंटरनेट, एनी डाउट, एंड व्हाटएवर वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन, व्हाटएवर वी आर गेटिंग, that information is authentic or not, that is secondary part of discussion. वो information verified है या नहीं, that is secondary part of discussion. I remember one beautiful quote I have seen on a doctor's clinic. Doctor written on their clinic, believe in your doctor, not in Google. Can you understand what the doctor want to say? Doctor want to say कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बिफोर गोइंग टू डॉक्टर, हम गूगल पर अपने आप को सर्च करने की कोशिश करते हैं कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, एंड देन वी आर्ग्यू विद द डॉक्टर कि इंटरनेट पे तो ये है सर, आप ये कह रहे हैं. देन डॉक्टर कई बार परेशान होकर बोल भी देता है, भाई तो फिर यहाँ क्यों आया, गूगल से ही दवा ले लेता, राइट? दैट्स हैपन, करेक्ट. सो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, दैट इज वेरीफाइड और नॉट, दैट इज सेकेंडरी पार्ट ऑफ डिस्कशन, जस्ट एग्जाम्पल, राइट? बट वी आर गेटिंग समथिंग immediately. Instantly we are getting something, and what happened due to that? Somewhere it's affecting our attention period. We want each and everything immediately. We do not want to wait for anything. You know, sometimes if any video goes into in a buffering mode, we move to the next. We don't have a patience to just watch and wait. No. And that's why they said ki nowadays, you know, one more beautiful example against this study, you will 100% agree with me. Nowadays what happened, okay, if I offer you, let's go and watch 8-hour movie, what is your reaction? Are you mad? 8-hour movie kaun dekhega? Correct. If I convert my words ki nahi, 8-hour movie nahi, let's watch in a 16 parts, then my mind says, okay, it sounds good, we can watch. हो तो रहा है आजकल. वेब सीरीज क्या है आजकल? यही तो है, 6 से 8 घंटे की मूवी, दे स्प्लिट इनटू द पार्ट्स. दैट्स हैपेंड. सो सेम थिंग, व्हाई वी आर नॉट अप्लाइंग इन द ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी? वी हैव टू अप्लाई. डोंट क्रिएट ए लॉन्ग वीडियो इन वन गो, split into the part 1 2 3 4 like this, and then upload it to utilize this small attention period of the students. अदरवाइज यू नो वीडियोस बनाने के जो एफर्ट्स हैं वो टोटली वेस्ट हो जाएंगे, टोटली वेस्ट. सो उस अटेंशन पीरियड को यूटिलाइज अगर हमें करना है, क्रिएट ए स्मॉल वीडियोस 10 to 15 मिनट ओनली. एंड वन मोर थिंग, ट्राई टू डू इट. आई एम नॉट सेइंग कि आपको करना ही है, कोशिश कीजिएगा. वी आर ए टीचर, नॉट ए डायरेक्टर, करेक्ट? तो एक कोशिश कीजिएगा एक चीज करने की, जैसे कि आपने वेब सीरीज में भी देखा होगा, व्हेन पार्ट 1 इज एंडिंग, दैट इज एंडिंग विद सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दैट इज वी आर ईगर टू वेट फॉर द पार्ट 2. तो सेम चीज हमें भी अपने जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें बनाने की कोशिश कीजिए. आई एम सेइंग, ऑलरेडी टोल्ड यू, वी आर ए टीचर, नॉट ए डायरेक्टर. जस्ट ट्राई इट, जस्ट ट्राई इट. थोड़ा मुश्किल है. अगर 10 पार्ट्स मैंने वीडियो को बनाए हैं, 10 में से अगर मैं 2 या 3 पार्ट्स में कुछ ऐसा कर पाता हूं, देन इट विल बी गुड फॉर मी.
2 या 3 पार्ट्स में भी कुछ, एंड आई एम एंडिंग दिस वन विद सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि स्टूडेंट वेट करें कि इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, स्टूडेंट वेटिंग फॉर योर रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की जरूरत है, करेक्ट। सो जस्ट ट्राई टू डू इट, थोड़ा मुश्किल है करना, आई नो, ऐसा करना, राइट। तो कोशिश कीजिएगा, स्मॉल वीडियोस बनानी है तो ऐसा करना होगा। अब क्वाड्रेंट 1 जो वीडियो लेक्चर है, टू कंप्लीट दिस क्वाड्रेंट 1 आई डिवाइड इट इन दी 3 पार्ट्स। क्वाड्रेंट 1 वीडियो लेक्चर्स की जो हम बात कर रहे हैं, ई ट्यूटोरियल्स, आई डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। इसको अचीव करने के लिए क्रिएट, अपलोड एंड शेयर, क्रिएट, अपलोड, शेयर, तीन स्टेप्स में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे क्वाड्रेंट 1 को, वीडियो लेक्चर्स को। क्रिएट, अपलोड, शेयर। क्रिएट द वीडियो विद द हेल्प ऑफ फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो कैसे क्रिएट करना है, क्या टेक्निक्स फॉलो करनी है, दैट वी डिस्कस्ड, सॉफ्टवेयर के हेल्प से, और टेक्निक्स क्या फॉलो करनी है व्हाइल व्हेन यू आर क्रिएटिंग द वीडियो लेक्चर्स, दैट इज वन, क्रिएट। सेकंड इज अपलोड, upload it on the YouTube, then share from YouTube to the platform। 3 चीजें हमें करनी है, क्रिएट, अपलोड, शेयर। सो क्रिएट हम बहुत अच्छे से डिटेल्ड में डिस्कस कर चुके, while we creating what step we need to be follow। now second part is upload it on the YouTube पे वीडियो अपलोड की जाए। यस मैम। So can we have a break for 5 minutes before we start the next part? इस सेशन इज वन सेशन 1 घंटे का या 1.5 आवर का मैम, 90 मिनट? I think we have a session up to 12:30. So यस, yeah, so that's why after 1 hour I thought that there can be a break if you are comfortable with okay, that. no, I don't have an issue, we Okay, can, right. sure, So for sure. 5 minutes, we can have a break at this moment before we Sure. start with the next part. Thank you so much, sir. Yeah, see you after 5 minutes. Yeah, sure.
Yes, ma'am. Shall we start? Sure, sir. Yes. Okay. All participants are here. Please switch on your cameras. Let me see. All you are here. Yeah. Okay. Let's start. So 1 hour more discussion के लिए तो इतना ही समय मिला है हमें. Otherwise, you know, academicians always hunger to speak. बहुत कुछ होता है बोलने के लिए, बट एक टाइम ही होता है जो उनको कहता है रुक जा भाई, अब इससे आगे नहीं. करेक्ट. तो मेरे पास 1 घंटा और है बस आपके साथ बात करने का, उसके बाद टाइम ओवर होता है. सो लेट्स सी इन 1 आवर और कितना हम डिस्कस कर सकते हैं. ओके. सो अब हम मूव करते हैं मेन एजेंडा जो है हमारा आज इस सेशन का, मूव थ्रू मूडल. अब मूडल ही क्यों, why we choose the Moodle as a learning management platform. अब Moodle की हम बात करते हैं. See, we have lots of platform to transact the material online. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको प्लेटफॉर्म या मैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS कहूँ, both are the same thing. Platform either LMS, learning management system, both are the same thing. So we have lot of platforms to transact the material online. I'll show you one slide. Yeah. We have a lot of platforms to transact the material online. You can see Moodle, OpenEdX, Sakai, Angel, eTutor, Google Classroom, Course Builder, Blackboard, Coursera, Canvas. And one side I have written Swayam separately. That is again a platform. Technically, agar मैं कहूँ, Swayam is just a platform to launch the course online. But the major difference जो बाकी प्लेटफॉर्म से इसको अलग करता है, that is the difference is Swayam is a recognized platform by the Ministry of Education. That is the major difference here. Otherwise, technical term में अगर मैं बात करूँ, Swayam is a platform to launch the course online, just like other we have Moodle और OpenEdX और बहुत सारे Canvas, Brightspace, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास to launch the course online. और बहुत सारे ओपन सोर्स में भी अवेलेबल है, जैसे कि Canvas है, बहुत सारे हैं. So why we choose the Moodle here? इतने सारे प्लेटफॉर्म में से हमने एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, सिर्फ Moodle. Why? उसको समझना भी बहुत जरूरी है कि Moodle ही क्यों. Right. So let's understand from this slide LMS. What is a LMS? एक LMS क्या होता है and what is our requirement? Based on our requirement, then we try to find out a solution कि अब हमें कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए. What is a LMS? LMS की एक typical definition है in front of you, a software application or web-based technology used to plan, implement and assess a specific learning process. That is a typical definition of a LMS. LMS थोड़ा डिफरेंट है. आपको एक जैसे कि जो वेबसाइट्स होती हैं, डोंट ट्रीट लाइक ए LMS इज ए वेबसाइट. वेबसाइट्स पे क्या होता है, और समटाइम्स कि यूट्यूब है, दीज आर जस्ट ब्रॉडकास्टिंग पोर्टल्स. ब्रॉडकास्टिंग द थिंग. यूट्यूब है, दीज आर जस्ट ब्रॉडकास्टिंग द इंफॉर्मेशन. कोई भी आपकी वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स है, कोई वेबसाइट जो होती हैं, दीज आर जस्ट ब्रॉडकास्टिंग द इंफॉर्मेशन. वन वे ट्रैफिक, one way interaction. But in the LMS, any LMS, we have two-way interaction. We have two-way interaction. We are interacting with the students. We are taking the live classes. We are teaching asynchronous and synchronous mode, online, blended mode. और जैसे हम चाहें हम उसको use कर सकते हैं. So that is a major difference कि जो websites होती हैं, that is the one way interaction, but जो LMS होते हैं, these are the two way interaction. That is a major difference here. So LMS, learning management system. Now what is our requirement in a LMS? What we are looking into a LMS? In any LMS we have we want कि हम उसमें कोर्स डिजाइन कर सकें, एसिंक्रोनस सिंक्रोनस टीचिंग में पढ़ा सकें, लाइव क्लासरूम इंटरेक्शन, टीचर कोर्स क्रिएशन, ई बुक्स और ये सारा मटेरियल शेयर करें. एंड दैट LMS शुड वर्क ऑन ऑल काइंड ऑफ द डिवाइसेस लाइक माय लैपटॉप, टैबलेट, आईपैड, एवरीवेयर इट शुड वर्क. It should support on the browser and simple to use. These are our typical requirement which we are looking in any LMS. किसी भी LMS में हम जो देखते हैं. अब LMS के टाइप्स क्या होते हैं? There are 3 type of LMS.
proprietary LMS, open source LMS, and cloud-based LMS. And that has been used in two different versions, academic and enterprise versions, and that is used in other verticals also, like in telecom, consulting, manufacturing, government, retail, healthcare. So many verticals also using these kind of LMS. So you see, it's a totally customizable. तो कोई भी अपनी रिक्वायरमेंट को अकॉर्डिंग इनको कस्टमाइज करके यूज कर सकता है. सो इट्स नॉट लाइक कि दैट एलएमएस इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओनली. नो, it's using in other sectors as well. After modification, they are using it. So majorly, we have three type of LMS: proprietary, open source, and cloud-based. अब इनको डिस्कस करते हैं. We know our requirement क्या है. अब LMS को समझते हैं. Then we will jump कि हमें कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है. We should know why we are using Moodle. तो proprietary LMS की अगर मैं बात करूं, proprietary LMS means we have to buy the license. We have to buy the product. Like we have so many proprietary article like few academic software, SPSS, Stata, eView, Mathematica, ArcGIS. So many academic softwares we have that first we have to buy the license, only then we can use it. Like Windows operating system, Microsoft Office. It's so that we need to buy first, then we can use it. That we call as a proprietary article. So there are a lot of proprietary LMSs available, like Desire to Learn, Brightspace. These are the proprietary article. We have to buy the license, then we can use it. Second type is open source learning management system. And open source में हमारे पास Moodle है, Canvas है, Sky है, Chimila, eFront, Joomla, Digital Chalk, बहुत सारे हैं, right? And cloud based में we have a learning management system, for example Google Classroom. Cloud based and free open source. Hope you remember मैंने बहुत clearly आपको definition दी थी उसकी कि क्या product में difference क्या होता है. One side I have a open source and one side I have a cloud based, and I gave you a beautiful example to understand the difference between cloud based and cloud based and free open source with the help of Cake. Hope you remember, right? So in the cloud base, we do not have the source code and we are just using it. But on the open source LMS, we have the source code. We have the source code and we can modify it and using it. So these are the three type of LMS: proprietary, open source, and cloud based. अब इनमें pros and cons क्या हैं इनके? Pros and cons क्या हैं of these three type of LMS के pros and cons क्या हैं? पहला proprietary LMS. The advantage is proprietary LMS के advantage क्या है? We will get the training and support instantly. It's a reliable product. After a lot of testing and following the software engineering paradigms, after a lot of testing, then these kind of products are available in the market. So training, support, सब आसानी से मिल जाता है. But disadvantage क्या है? We have to spend the money. We have to buy it. Then we can use it. It's not available freely. We have to buy it. That is the biggest thing, and that I think why we are recommending such a thing, which is if available in the freely, then why we are recommending in a paid mode. So proprietary तो पहली option हमारी कभी हो ही नहीं सकती, right? Let's move to next now. The open source LMS. इसका benefit और disadvantage क्या है? Benefit तो ये है कि it's available in free along with the source code. It's available free along with the source code, and we can customize it. But disadvantage भी है इसका एक. What is the disadvantage? The vulnerability. Vulnerability mean to say अगर कोई प्रोडक्ट फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में है और उसका सोर्स कोड पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, so as a educator, as a teacher, I know कि उसका सोर्स कोड क्या है, how to use it. As a hacker, also I know कि उसका सोर्स कोड क्या है. So if I have to attack on some software which is built on the free open source software, तो उसको अटैक करना बहुत आसान है if at the development stage उसके वो बेसिक पाथ रिमूव ना किए जाएं. जैसे कि बाय डिफॉल्ट यूजर नेम मैक्सिमम
फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में यूजर नेम एडमिन के नाम से होता है। सो एज ए हैकर मेरा 50% काम तो सोल्व हो गया कि यूजर नेम मुझे पता है एडमिन है, अब मुझे पासवर्ड को क्रैक करना है, करेक्ट। बट दैट वी कैन रिमूव इट एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट स्टेज में, उसको एडमिन को चेंज करके कुछ और नाम दे सकता हूँ, सो दैट हैकर डज नॉट गेस कि यूजर नेम अब एडमिन नहीं रहा है। So these are the disadvantage in the open source, but we can remove it. We have a chance to remove it. हम कर सकते हैं, इन चीजों को हटाया जा सकता है। Now third is cloud based product. Cloud based product में एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इज हमें ना तो बाय करना है, ना डाउनलोड करना है, ना इंस्टॉल करना है, जस्ट रजिस्टर इट एंड यूज इट, दैट्स इट। कुछ नहीं, जस्ट इन ए 1 minute माई प्लेटफॉर्म इज रेडी लाइक गूगल क्लासरूम। एवरीवन हैव ए जीमेल आईडी, जीमेल आईडी पे जाइए, ओपन योर गूगल क्लासरूम एंड दैट रेडी टू यूज, नो नीड टू डू एनीथिंग। बट द डिसएडवांटेज क्या है? हम कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, कोई भी एलएमएस, कोई भी किसी भी तरह का एलएमएस यूज करते हैं, वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ डाटा सिक्योरिटी दे आर फॉलोइंग एट देयर एंड। कि मैं तो बहुत सारा लेट्स से ऑनलाइन कोर्स क्रिएट कर रहा हूँ और बहुत सारा मटेरियल अपलोड कर रहा हूँ, एंड वी डोंट नो कि बैकएंड पे अगर वो मेरा डाटा ही सेल कर दें कहीं, तो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स किस तरह का वो फॉलो कर रहे हैं, वी डोंट नो। वी आर यूजिंग क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट ऑन देयर मर्सी एज दे आर ऑफरिंग। कोई उसमें चेंज मॉडिफिकेशन इज नॉट परमिसेबल, वी आर यूजिंग इट एज दे आर ऑफरिंग इट। तो 3 टाइप ऑफ एलएमएस हमारे पास हो गए, एंड वी नो आवर रिक्वायरमेंट, ओपन सोर्स, क्लाउड बेस्ड एंड प्रोप्राइटरी। सो प्रोप्राइटरी वी आउट ऑफ द लिस्ट, हम उसको कभी नहीं करना चाहेंगे। नाउ कम टू दी ओपन सोर्स एंड क्लाउड बेस्ड, इसमें से हम कौन सा यूज करें? द फर्स्ट चॉइस इज ऑलवेज ओपन सोर्स, दैट विल बी कंप्लीटली इन आवर कंट्रोल। क्लाउड बेस्ड पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, राइट? वी आर यूजिंग इट ऑन देयर ऑन द सर्विस प्रोवाइडर। So we always recommend कि आप ओपन सोर्स प्रोडक्ट, फ्री ओपन सोर्स प्रोडक्ट लाइक Moodle you can use it. So बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास जो फ्री ओपन सोर्स की कैटेगरी में आते हैं, बट उनमें से we pick the Moodle only. Why Moodle? Reason is Moodle is the one of the oldest platform which is available. Moodle is more than 20-year-old platform. First Moodle designed in 1999 by the research scholar Martin Douglas, and then in August 2001, the product launched in the public domain. So it's 20-plus-year-old platform which is available for the educators. Right? 20. So anyone can download this Moodle from this. There is a website. Moodle.org. Anyone can go there, right? Moodle.org, and go to download, and download this one here. You can see download Moodle 3.11.5 version. These are the 2 versions right now, or we can download any older version as well. So just download, right? So what we are downloading here? We are downloading here source code. Source code means let's say आपने कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, फ्री कैम, एक्टिव प्रेजेंटर, ओबीएस। डाउनलोड करने के बाद आप उसको एग्जीक्यूट करते हो, क्लिक ऑन नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, वो आपके वो सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। दैट इज एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। वो एक एप्लीकेशन डाउनलोड होती है कंप्लीटली, एंड यू जस्ट इंस्टॉल इट, राइट? बट हियर इज नॉट ए एप्लीकेशन, इट्स ए सोर्स कोड। और इस सोर्स कोड को चलाने के लिए I need a specific environment. So those who are from the technical background, they can understand. We need a environment. The name is LAMP. LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP. एक सर्वर इन्वायरमेंट की जरूरत होती है. On that server, we need to deploy this source code. Then our site is ready to use. See, Ambedkar University, where I am working, we are just 11-year-old university. Just 11-year-old university, and we are using our own MOOCs delivery platform from day one, which we built on Moodle. You can see in front of you. That is our own MOOCs delivery platform we are using from the day one. 11 साल से तो हम यूज कर रहे हैं. And you know, Swayam is just launched 4 years back, 2016 में आया था, and Moodle is available more than 20 years.
And we have our own MOOCs delivery platform, which we designed on the Moodle. And we are upgrading it time to time. We are changing it. They are customizing it, modifying it. So modification, see, Moodle support 300 plus feature. 300 plus feature. What I mean to say 300 plus feature. So in the Moodle, I can integrate so many things. Like I can integrate within the Moodle Zoom, Jitsi, Big Blue Buttons, attendance, certificates, analysis tool softwares. I can integrate anti-plagiarism applications like Turnitin, Urkund. So when student upload their assignment, that will automatically check by the anti-plagiarism application and shows you the similarity result within the Moodle. So Moodle is a one umbrella where everything in it we can integrate, and we can just sign in into the Moodle and everything is here. So we can integrate like Zoom. We can take online live classes within the Moodle, or we can use free open source video conferencing tool Jitsi and Big Blue Button, so that we can take a online classes within the Moodle. We can take online attendance. Everything is available. So whatever the activity we can do in a online teaching learning activity, everything is available within the Moodle. Within the Moodle, we can support it. So now question is कि अब अगर मुझे यहाँ से Moodle डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है तो कैसे करें? दैट इज प्योरली टेक्निकल जॉब कि मुझे यहाँ डाउनलोड करके एक सर्वर इन्वायरमेंट में इसको डिप्लॉय करूँ, देन आई प्रिपेयर ए Moodle सर्वर. दैट इज प्योरली ए टेक्निकल जॉब, प्योर टेक्निकल जॉब. So just contact your technical department and they can do it very easily. If your university college have your own server environment, then you can deploy it on locally. आप अपने local जो servers हैं university college के अंदर वहीं पर deploy कर दो, and then that we did it in our university local server पे हमने किया हुआ, कहीं बाहर hosted नहीं है ये हमारी Moodle site. We did it in our local servers. So you can do it. Otherwise you can hire a hosting space. जैसे कि website कहीं ना कहीं बाहर host होती हैं, they are running our websites. So on the same space जहाँ पर वेबसाइट है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस लेकर यू कैन डिप्लॉय दी आस्क टू डिप्लॉय दी Moodle there. Your own independent site will be ready. अब Moodle can be used as centric learning management system. सेंट्रिक को समझाने के लिए लेट्स से अगर आप में से कोई गूगल क्लासरूम अगर आप यूज कर रहे हैं, सपोज आप अगर गूगल क्लासरूम यूज कर रहे हैं, गूगल क्लासरूम लाइक प्लेटफॉर्म इज इंडिविजुअल ओनली. वो सिर्फ आप ही तक सीमित है. दैट इज ID to IDs, इंडिविजुअल पर्सन यूज कर रहे हैं. एज ए डीन और एज ए वाइस चांसलर अगर मैं देखना चाहता हूँ कि हाउ मैनी कोर्सेज आर रनिंग ऑनलाइन इन माय यूनिवर्सिटी कॉलेज, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेक कि कितने ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, कितने उनमें स्टूडेंट हैं और किस स्टेज पर है, क्या उनकी प्रोग्रेस है. देन आई हैव टू आस्क एवरी टीचर, और वो उनकी इंडिविजुअल आईडीज पर होते हैं, तो वो मैं चेक नहीं कर सकता. देन आई हैव टू आस्क कि आपकी रिपोर्ट दो, ये दो. बट Moodle can be a centric learning management system where everything is available on single place. एक Moodle है, उसके साथ सारे टीचर स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं. and now the authorities can have a complete view कितने कोर्सेज हैं, कितने टीचर्स हैं ऑनलाइन, एंड किस प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है. एवरीथिंग इज फ्रीली अवेलेबल. सो एवरी टाइम एज ए सिंगल प्लेटफॉर्म, सो न्यू यूजर आएंगे, ऐड होते रहेंगे, एंड दे आर यूजिंग दिस Moodle. सो Moodle इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म. Moodle लाइक ए सी, एवरीथिंग इन इट, एवरीथिंग जो भी आप सोच सकते हैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में होना चाहिए, एवरीथिंग इज सपोर्टेड बाय Moodle. एवरीथिंग. इस पे आप कुछ भी मॉडिफिकेशन करके अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हो. एवरीथिंग इट इज हियर, राइट. सो अब अगर Moodle आई सेड कि अगर मुझे यूज करना है, दैट इज फॉर दैट आई नीड ए टेक्निकल एक्सपर्टी, एंड इट विल टेक टाइम. इट मे बी टेक 1, 2 day, 3 day टू लॉन्च दिस Moodle. बट इफ आई वांट टू यूज दिस Moodle इंस्टेंटली, मुझे अभी यूज करना है ऑन द स्पॉट, तो मेरे पास एक सोल्यूशन है उसका. कि Moodle इज अवेलेबल ऑन पब्लिक डोमेन. सो कोई भी प्रोडक्ट जब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है, एनी प्रोडक्ट विच इज अवेलेबल अंडर द पब्लिक डोमेन वेयर वी कैन से नो राइट रिजर्व्ड,
domain available होता है, and then anyone can download it and customize it, modify it as per their requirement, and after modification they can say कि now it's my copyright. So similar thing happened with the Moodle as well. So what happened? There is a one private firm. The name is Genomio.com. There is one private firm that there is Genomio.com. It's opening. Yeah, you can see here Genomio, Gnomio. There is a one private firm, Genomio.com. What they happen? इन्होंने अपने सर्वर इन्वायरमेंट पे, बड़े इन्वायरमेंट पे, डाटा सेंटर्स पे, दे डिप्लॉय द Moodle. दिस इज द सेम थिंग Moodle, और उसको मल्टीपल इंस्टेंस में, सिंगल इंस्टेंस में इंडिविजुअल को बेसिक वर्जन देना शुरू कर दे. जैसे हम क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन यूज करते हैं, वी आर यूजिंग बेसिक वर्जन देन एडवांस वर्जन, लाइक सो दे डिवाइड दिस Moodle like this, and basic version providing they are free of cost to the educators. Same. So I can say कि Moodle also available in the cloud based product. Moodle क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट में भी अवेलेबल है, बट अगर मैं क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट पे अभी यूज करता हूँ Moodle को, रिमेंबर कोई भी क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट जब हम यूज करते हैं, वी आर यूजिंग इट विद सम लिमिटेशंस. अनलिमिटेड वो कभी नहीं होता. क्लाउड बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, that have some limitations. So here again in the cloud based जो हम यूज करेंगे, we will have some limitations. Limitation means मैं कोई इसमें additional feature नहीं ऐड कर सकता. जैसा मुझे बेसिक वर्जन में मिनिमम फीचर्स जो मुझे मिलेंगे, एंड आई थिंक इज मोर देन सफिशिएंट, जो मिनिमम फीचर्स मुझे यहाँ पे मिलते हैं, मोर देन सफिशिएंट, and I can use it. But if I want to add some additional feature, then I have to buy their advanced version. And one more thing here, when you are logging into the Genomio.com, the advertisement will appear first, then your site. So the main earning source of this Genomio.com is the advertisement, correct? So if we want to use this Genomio Moodle basic version, then only we have one option to just to ignore this advertisement. Otherwise मुझे उसका advanced version buy करना पड़ेगा, then this advertisement will disappear, correct? So advertisement थोड़ा सा दिखेंगी and then our course, तो उसको हम ignore कर सकते हैं. It's not a big challenge. तो यहाँ पर आप register करें and you will get your own independent Moodle site within a 1 minute. अब रजिस्टर कैसे करना है? फर्स्ट वी हैव ए ऑप्शन URL, देन ईमेल, देन लैंग्वेज, एंड देन आई हैव रीड द टर्म्स एंड कंडीशन लाइक दिस. सो फर्स्ट URL में सपोज अगर मैं यहाँ पर दीपक लिखता हूँ, देन माय साइट नेम विल बी, यू कैन सी हियर, यहाँ पर और भी कुछ लिखा हुआ है .genomio.com. So my site will be, my URL will be deepak.genomio.com. Correct? So whatever you are entering here, that will be your website address, URL. That is the URL where you can access your portal, Moodle portal, Genomio portal. So whatever you are entering, deepak.genomio.com, कुछ भी आप नाम से आप उसको एंटर करें. Try to make it small, ऐसा हो कि जो easy to pronounce हो, जो स्टूडेंट को आप कह सके कि just go to that site deepak.genomio.com and वहां पर आपको आपका कोर्स मटेरियल मिल जाएगा. Just try to make it small so that it's easy to convey to the students, correct? So URL, then enter the email ID, and then just accept this terms and condition and create site. Simple. So after, within a few minutes or immediately, 5-10 minutes or immediately, you will receive a email from the Genomio on that email ID जो आपने यहाँ रजिस्टर किया है. इस email ID पर आपको एक Genomio से email आएगा. In that email you will find, पहले URL लिखा होगा, जो URL आपने यहाँ बनाया था, then username, then password. यूजर नेम यू विल सी कि सभी का सेम होगा, दैट इज द एडमिन. यूजर नेम सबका सेम होगा, URL डिफरेंट होगा, यूजर नेम सबका सेम होगा, एडमिन, देन पासवर्ड सबका यूनिक होगा, वो भी डिफरेंट होगा, करेक्ट? 3 चीजें आपको ईमेल पे आएंगी. एंड आफ्टर दैट यू कैन लॉग इन इनटू द Genomio साइट एंड योर Moodle प्लेटफॉर्म इज रेडी, करेक्ट? जब आप Moodle प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करेंगे, यू हैव टू लॉग इन वाया एडमिन. अब एडमिन ही क्यों? कि कोई भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो, कोई भी,
any learning management system, we have majorly three roles. कोई भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो, वी हैव मेजरली थ्री रोल: एडमिन, टीचर एंड स्टूडेंट। एडमिन, टीचर एंड स्टूडेंट, कोई भी आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ले लीजिए, कोई भी मेजरली थ्री रोल होते हैं: एडमिन, टीचर एंड स्टूडेंट। एंड दीज थ्री रोल लाइक ए पिरामिड, हायरार्किकल स्टेप्स में होते हैं। टॉप पे सबसे एडमिन, एडमिन के पास द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द साइट। Admin can do anything on complete site. Admin can access any course. Then teacher role, second level पर teacher में क्या होता है, you can create a course and after that you can add, update, modify in your course only. दूसरे teacher के course को आप touch नहीं कर सकते. That is the second level. Third level पे आता है student. Student, they can access the content in which they are enrolled. Let's say I'm running a 10 courses और 10 courses में मैंने different students को enroll किया हुआ है. So student can access only that particular courses in which they are enrolled. सारे course को access नहीं कर सकते. So these are the three major role. So admin, teacher and student. So when you log into the Genomio.com, you will find the username is admin. So admin, I can say कि admin can be a teacher, but teacher cannot be a admin. Because admin have the full control. So admin can be a teacher, but teacher cannot be admin. Correct? So we can do like this. So using the admin ID, you can create the courses and so many things. So after logging into the Moodle, now we will do the 5 steps in the Moodle. 5 चीजें हम Moodle पे करेंगे once we log in into the Moodle. पहला स्टेप होगा यूजर क्रिएट करना. यूजर क्रिएशन वाया 3 मेथड्स. सो कोई भी हम चूज कर सकते हैं, वाया मैन्युअली एक एक करके यूजर बनाना, या फिर एक्सेल में यूजर्स को अपलोड करके एक क्लिक में अपलोड कर देना, या फिर सेल्फ ईमेल बेस्ड रजिस्ट्रेशन ओपन कर देना. बट आई थिंक द मैनुअल और वाया एक्सेल इज द गुड ऑप्शन वी हैव, बिकॉज वी आर रनिंग our course in a blended mode. We are not running our course for the online, complete online mode. हम पब्लिक के लिए कोर्स लॉन्च नहीं कर रहे हैं जैसे कि स्वयं में होता है. On the Swayam, anyone can register and anyone can join any course, correct? But in our situation, we are not running a course like this on Swayam. So हमारे पास अपने registered enrolled student हैं. We will need to create first their user IDs. वो आप एक एक करके बना लीजिए अगर वो कम है. अगर आपको लगता है कि यूजर्स काफी हैं, 100, 200, 500, 1000 हैं, then you can use the Excel file. Just upload the data in Excel. In a single click, you can create the all users. So first task is user creation. Then second task मेरे पास आता है course creation. मुझे course create करना है. Second task is course का create करना. Course means one paper, correct? One program. Under the one program we have multiple papers. तो पेपर्स को हम यहाँ पे कहते हैं कोर्सेज. तो कोर्स को क्रिएट करना, जैसे कि बीए मैथमेटिक्स एक प्रोग्राम है, उस मैथमेटिक्स के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में 4 कोर्स हैं. 4 कोर्सेज में से एक कोर्स या जो भी है 4 कोर्सेज में यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ. दैट इज द कोर्स. एंड ईच कोर्स हैव देन फर्दर टॉपिक. जैसे हमारा सिलेबस होता है एक कोर्स का, उसमें हमारे यूनिट, सेक्शन या टॉपिक्स डिफाइन होते हैं. करेक्ट? तो सेम वे, after creating the course, we will uploading the content in the topic or unit or section wise. Then we will upload the resource. Here you see resource कौन से हैं मेरे. resource है मेरे पास, just remember this 4 quadrant approach here. Here it is, just a second. Just remember this 4 quadrant approach. So then we will upload the resource. So resource कहाँ से आएंगे मेरे? Quadrant 1 video lecture, that is the resource. Quadrant 2, that is the other than video lecture I have. Right? So my lecture PPT, article, journals, वो सब resource आएंगे मेरे. Correct? Right? So these are the first and second quadrant is the resource. Then we will do the enrollment. Student को particular courses में enroll करना. Then finally for the assessment, कि मुझे assessment भी करनी है. assessment के लिए
You can see here assignment, then MCQs, then discussion forum, right? तो assignment लेने के लिए I will use the assignment in the Moodle. Then quiz I can do with the help of Google Form, or in the Moodle there is a one option to create the quiz. That is a wonderful option we have. Then discussion form. That is the third and fourth quadrant approach. Third and fourth quadrant approach. You can see this assignment and the discussion forum. So what happened when you delivering the course online on the Swayam, right? Let's say in one course I have 4 unit, 4 section, or 4 topic. My each section should reflect this 4 quadrant approach. Each section, हर सेक्शन में मेरे पास ये चारों क्वाड्रेंट रिफ्लेक्ट होने चाहिए. Each section. ऐसा नहीं है कि क्वाड्रेंट यूनिट 1 में वीडियो, यूनिट 2 में पीपीटी, यूनिट 3 में असाइनमेंट एंड हो गया. नो, my each section should follow all 4 quadrant approach. All 4 quadrant. So in this 4 quadrant approach, हमने we understand first quadrant is video. हमें पता है, उस पर काफी डिस्कस किया हमने वीडियो लेक्चर्स पे. Then second quadrant is your lecture PPTs article. I think that is already you have. इस पे ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है. Third quadrant says about the online assignment and MCQs. MCQ की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में, here MCQs, here you can see. So we have lot of options to take the MCQ. अगर आप गूगल में भी एक इनबिल्ट ऑप्शन होती है to create a quiz, that is a wonderful option. सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो Moodle में इनबिल्ट है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो. बट अगर आप कोई और ऑप्शन यूज करना चाहते हैं एज ए MCQ, आई थिंक जो सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा यूज में आने वाला है, दैट इज द गूगल फॉर्म. सबको पता है गूगल फॉर्म में MCQs कैसे बनाते हैं. एवरीवन इज फेमिलियर विद द गूगल फॉर्म, करेक्ट? एवरीवन. नाउ लेट्स सी एक एडिशनल थिंग. चलो इस गूगल फॉर्म के साथ करते हैं एक एडिशनल थिंग. एवरीवन इज फेमिलियर विद द गूगल फॉर्म. एवरीवन, करेक्ट? Everyone is familiar with the Google form. तो कैसे बनाते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू शेयर विद यू कि गूगल फॉर्म कैसे बनाना है. एक एडिशनल चीज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जस्ट सेकेंड, लेट मी ओपन दैट वन. जस्ट a second, give me just 1 second, let me search in my system. Yes, got it. Okay, now let me share the screen. Okay, so एक गूगल फॉर्म में MCQ कैसे बनाना है, we all are familiar. अब उसमें थोड़ा एड ऑन करते हैं हम. एड ऑन में क्या है, लेट्स से यू क्रिएटेड ए गूगल फॉर्म एंड नाउ यू वांट टू शेयर विद द स्टूडेंट. तो आपने जब आप शेयर करते हैं गूगल फॉर्म MCQ को, दैट इज द थर्ड क्वाड्रेंट अप्रोच ऑफ दिस स्वयं. तो Moodle के थ्रू अगर मैं शेयर करना चाहता हूँ इस क्विज को, इस MCQ को, that I have on the Google form. So when you are sending the Google form, you have, I think, use first and second. First ऑप्शन है कि मैं वाया ईमेल किसी को भी गूगल फॉर्म भेज सकता हूँ. सेकंड है कि मैं इसका URL कलेक्ट करके, शॉर्टर URL करके किसी को भी भेज सकता हूँ. बट थर्ड ऑप्शन, एम्बेडेड HTML, आई थिंक रेयरली यू यूज्ड दैट वन. शायद आपने रेयरली ही इसका ऑप्शन को यूज किया होगा. थर्ड इज ऑप्शन embed HTML. embed HTML क्या होता है, ऑल द प्लेटफॉर्म्स, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, Moodle जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म सारे सपोर्ट करते हैं. Moodle and every platform support the embed HTML code. So what I can do, I can copy this HTML code and paste that HTML code into the Moodle, right? और वहां पर क्या होगा, एक हाइपरलिंक की तरह नहीं होगा, देन ये कंप्लीट क्विज Moodle के अंदर आ जाएगी. एंड देन इट्स लुक लाइक कि ये Moodle का ही पार्ट है, बट एक्चुअली इट्स ए गूगल फॉर्म. बट उस गूगल फॉर्म को इस embed HTML के थ्रू अगर मैं Moodle पे यूज करता हूँ, देन इट्स लुक लाइक इट्स ए पार्ट ऑफ माय Moodle. आई विल शो यू वन एग्जांपल, राइट? देन इट्स लुक लाइक कि पार्ट ऑफ माय Moodle.
Second, let me log in. I'll show you one example. Okay. Yes, you can see here. This is the Google form, but it's look like कि ये मेरे Moodle का ही part है. This is the one way of sharing this one. So I can attempt this quiz within the Moodle. Within the Moodle, that is the advantage of the embedded code. So मैं इसको देखिए Moodle पर ही use कर रहा हूँ, but it actually is from the Google form. Next, first question आ गया, correct? And then next. So simple में Google form की quiz को यहीं पर use कर रहा हूँ, correct? So that is the one way to use the Google form here. And one more thing, okay, एक और चीज करते हैं. Google form बन गया, Moodle पे आपने embedded HTML के through लगा भी दिया, okay. I'm sharing this Google form link to all of you on the chat box. Total URL copy, and in the chat box, chat. Okay, I shared with all of you this chat box पे मैंने आपको सबको Google form share किया है अभी, all of you. Now, just do one thing. इस Google form में 2 questions हैं. That will help for you. बहुत अच्छा help करेगा आपको. 2 questions हैं इस Google form में. Just fill कीजिए इस form को Google form में. तो quickly just attempt कीजिए. Only 2 questions. Hardly it will take 1 minute to attempt you. Just 1 minute लगेगा आपको. इस Google form को fill कीजिए. Google form को fill करने के बाद 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद वंस यू क्लिक ऑन सबमिट बटन, जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, गो टू योर इनबॉक्स. इन योर इनबॉक्स यू विल रिसीव ए सर्टिफिकेट इंस्टेंटली. जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, आपको एक ऑटोमेटिकली एक सर्टिफिकेट आपकी ईमेल पर आ जाएगा. बट दैट सर्टिफिकेट इज कंडीशनल. कंडीशन क्या है? I put here 50% pass mark condition. 50%. यानी कि 2 क्वेश्चन है, 2 में से अगर एक भी ठीक हुआ तो 100% में 50% आपको आ गए, यू विल गेट ए सर्टिफिकेट. अगर दोनों ही गलत हुए, यू विल नॉट रिसीव ए सर्टिफिकेट. तो सेम थिंग यू कैन डू विद योर स्टूडेंट. आई लेट यू नो कि इसको कैसे बनाना है. पहले इसको जरा सबमिट करके सर्टिफिकेट लीजिए एंड चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कीजिए, यू विल रिसीव द सर्टिफिकेट और नॉट. जस्ट रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स, यू रिसीव्ड द सर्टिफिकेट और नॉट, राइट? सो इमीडिएटली अगर मेरा पास मार्क क्राइटेरिया 50% है, you will receive this certificate immediately on your inbox. So that will you can say make more interactive your online teaching. Moodle की help से और Google और so many things, इनकी help से आप एक interactive Google form, एक interactive MCQ बना सकते हो. स्टूडेंट को instantly एक सर्टिफिकेट मिलेगा. that can be a appreciation certificate or marks or grades like this. So student will enjoy कि हाँ उसको instantly कुछ मिला जो भी उसने सबमिट किया था. तो एक on the spot certificate आपको मिलेगा. So those who have received the certificate, reply me in the chat box, please quickly. I can see only 3-4 replies only till now. Please quickly do it. Then I will show you how to add this kind of certificate with your Google form. आप इसको कैसे कर सकते हैं? I will show you quickly. So I have only last 15 minutes. So I will take more 5 minutes. Then last 10 minutes I will keep it for the question answer session. Right. So quickly do it. I can see a lot of responses now in the chat box. Received. Great. So you received the certificate. Great one. Now come back to my screen. Now I will show you. Okay. Come back to, let me share the screen. Yeah. Hope my screen is visible. Now come back to my screen. Now I will show you how you can integrate this kind of instant certificate with your Google form. Everyone is very much familiar with the Google form. That's why I picked this Google form. Otherwise,
क्विज करने के मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे क्विज में you can see here hotbot, Quizzy, Scoreative, Testmoz, ProfQuiz, Kahoot, so many options I have. MCQs के ये तो थोड़े से लिखे हैं मैंने, बहुत ऑप्शन है, तो आई जस्ट पिक वन ऑफ देम जिससे सारे फेमिलियर हैं, कोई मैंने नया चीज पिक नहीं किया है. So once you ready with this Google form, करेक्ट, जब आप गूगल फॉर्म बना चुके हो, देन हेयर इज द ऑप्शन दिस 3 डॉट्स, एंड के साथ जो ये 3 डॉट्स हैं यहाँ पर गए और यहाँ पर एड-ऑन्स पर गए. एड-ऑन्स, एड-ऑन्स में एक सर्च कीजिएगा एड-ऑन, द नेम इज सर्टिफाई EM, CERTIFYEM, इसको सर्च कीजिए एंड फर्स्ट वन इज हेयर, यू कैन सी सर्टिफाई EM, CERTIFYEM, एक सर्टिफाई EM, इसको इंस्टॉल कीजिए. इट विल आस्क नेक्स्ट नेक्स्ट अलाउ एंड इट विल बी वंस रेडी. सो आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, सो मैं दोबारा नहीं कर सकता इसको. आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, बट फर्स्ट टाइम यू जस्ट क्लिक इट ऑन एंड नेक्स्ट नेक्स्ट एंड अलाउ एंड इट विल बी add with your Google form. So once you add this with Google form, then here you can see the add-ons option है. जो add-ons जितने मेरे added हैं उनको check करने के लिए I have here this option add-ons. I go to the add-ons, certify EM. I can go now certify EM control panel of certify EM. So now certify EM control panel will open in the right hand side of my screen. You can see it's opening. It's opening the certify EM control. Now control is open. Here just do the few setting, 4-5 setting, and then your Google form is ready. वो settings क्या हैं? First is status. Status turn on off. Let's say आपका Google form run हो रहा है and you want कि अब certificates distribution बंद हो जाए but Google form चलता रहे. So you can just switch off it. Turn off certificate distribution, but Google form चलता रहेगा. Turn on it later on as well. Status. So now status is on. Then option is record. Record में I have a complete record in my Google Sheet. Certificate record. When I click on certificate record, a Google Sheet will open, and here I have a complete record to whom I issued the certificate. जैसे अभी मैंने कितने सर्टिफिकेट इशू किए, यू कैन सी हियर 11 फरवरी टू हियर, यू कैन सी. So now I have, you can see here, complete record to whom I issued these certificate number, name, email ID with a timestamp. So later on if I have to verify कि मैंने कितनों को सर्टिफिकेट इशू किया, I have a complete record to verify this one. You can see your name, those who have submitted this one. So I have a complete record with unique certificate number. आपके सर्टिफिकेट पे आपका एग्जैक्ट स्कोर है एंड नंबर है, दैट इज अ यूनिक, राइट. देन ऑप्शन इज पासिंग. पासिंग हियर मींस पुट द कंडीशन. जैसे कि मैंने यहाँ पर 50% रखा है. 50% मीन्स 1 क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन थे. लेट्स से इफ आई हैव 60 क्वेश्चन, आई कैन पुट 30, 40 और एनीथिंग. सो वंस मीट दिस कंडीशन ओनली दे विल गेट द सर्टिफिकेट. अदरवाइज इफ दे आर फेल दे विल नॉट रिसीव द सर्टिफिकेट. देन template में the certificate design which you received. So there are lot of inbuilt template we have here. Lot of inbuilt template you can see here. Lot of templates are here. You can pick any one and choose it. Or if you want to create your own certificate, then you can simply in the Google slide go to Google slide and create a certificate. And you can see you all are received this certificate that I designed manually in the Google slide and attached with this certify EM. And here the dynamic value है that I put into the double brackets, that is the identifier. Full name, everyone receive the certificate with your name, that is the full name. Dynamic identifier, date is dynamic, and then certificate ID is dynamic, and then score is the dynamic. Correct. So these are dynamic values are in the identifier, and you will receive this, start sending the certificate in on any template. Then quota means how many certificates you can send per day. If you are using it on your Gmail ID, personal Gmail ID, then you will found 100 email per day. But here I am using the Google Workspace ID, and in the Google Workspace ID
I have 1500 email per day quota. So I can send 1500 certificate in a day, and Google Workspace is email ID is free of cost for the university, not the individual level. In the Google Workspace email ID, you will get 5 TB Google Drive storage, but in the personal Gmail, you will get 15 GB only. So there is a lot of difference. We have Google Workspace ID, and that is again free of cost. No need to buy the Google Workspace. That is for the university and colleges level, you can get it in free, right? So this is a simple technique where you can create these third MCQ and discussion form is the fourth one, so, right? So now overall, come to this slide where we started. So here you can see we understand the content collection, then content development, then where we can store it on our Google Drive and YouTube. I think that part is left. We are not have time to discuss on that one. Storage, safety and security. Then we talk about content transaction कि इतना content बनाने के बाद अब इस content को share कहाँ करना है. We understand the LMS requirement and one of them we pick the Moodle and then we understand the steps in the Moodle कि Moodle में हम और क्या कर सकते हैं, right? अब Moodle को मैं practically आपको बता तो नहीं पाया due to the time constraint. So अभी मैं क्या करता हूँ आपको टाइम कंस्ट्रेंट होने की वजह से मैं Moodle आपको नहीं कंप्लीट दिखा पाया कि Moodle पे काम कैसे करते हैं. इट्स डिफिकल्ट 2 घंटे में. सो मैं क्या कर रहा हूँ अभी आपको, मैं अपने YouTube चैनल से आपको एक वीडियो का लिंक अभी चैट में दे रहा हूँ. दैट इज 1 आवर ट्यूटोरियल डेडिकेटेडली ऑन दी Moodle कि मुझे Moodle को कैसे यूज करना है. 1 आवर का ट्यूटोरियल है. सो मिंटू से आप मेरा सेशन कंटिन्यू कर सकते हो जस्ट वाचिंग दिस ट्यूटोरियल दैट इज इन द चैट बॉक्स हियर. So you can continue my session from here. अब इससे आगे Moodle कैसे यूज करना है, जो 5 स्टेप्स मैंने बताए थे इन डिटेल प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट मैंने इस ट्यूटोरियल में किया है. So you can go through that tutorial and you can learn deeply how to use Moodle. So अगर आपके क्वेश्चंस हैं Moodle को लेकर, आई थिंक आपके सारे आंसर्स इस YouTube की एक वीडियो में जो मैंने शेयर किया है, अभी मेरा चैनल है, मेरी वीडियो है, राइट? सो दिस माय ट्यूटोरियल यू विल गेट ऑल द आंसर. एंड इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन द गूगल क्लासरूम एज वेल, अगर Moodle के अलावा कोई गूगल क्लासरूम में भी इंटरेस्टेड है, देन आई एम शेयरिंग दी दैट एज वेल. सो दैट अगेन 1 आवर ट्यूटोरियल ऑन दी गूगल क्लासरूम. तो जस्ट कीप दिस URL इन योर सेफ कस्टडी. आप इसको रख लीजिए. सो मैं अभी गूगल क्लासरूम का भी कॉपी एंड पेस्ट. दिस वन इज हियर. सो सेकंड URL मैंने पेस्ट कर दिया गूगल क्लासरूम का, राइट? सो आप इनसे लर्न कर सकते हो. इनके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ Moodle को लेकर, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी को लेकर कोई भी डाउट है, देन आई एम गिविंग माय व्हाट्सएप नंबर, my email ID to all of you, correct? So you can ping me, you will get a reply. So I am with you for not just for the 2 session, for future as well. कोई भी किसी तरह का डाउट है, so just ping me, आपको वो सारी हेल्प मिलेगी, राइट? सो इसके साथ मैं स्टॉप करता हूँ अपने आप को. सो थैंक यू सो मच लिसनिंग मी सो पेशेंटली. आप सबने सुना. So thank you so much. Now it's time for the question answer session. So now please ask any question, whatever in your mind. Please, it's time for floor is open for the question answer. Yes, the session is open for questions. Anyone who is willing to ask. Sir, I have. Someone has raised the hand. Yes. Yeah, please. Sir, when we are using this emd HTML, is it only for Moodle or we can use this link anywhere else also in other tools? No. See, the embedded HTML, what happened? There are 2 things, source and destination. First, we have to identify source. The embedded HTML हमें मिलता कहाँ से है,
नॉट एवरी प्लेस, सभी कंटेंट, जितने भी कंटेंट होते हैं एवरीवेयर, हम सभी जगह से एम्बेडेड HTML हमें नहीं मिलता. एम्बेडेड HTML वी कैन गेट इट फ्रॉम यूट्यूब वीडियोज, गूगल फॉर्म, दैट इज अ वन सोर्स कि जहां से मुझे एम्बेडेड HTML मिल रहा है. नाउ सेकंड, डेस्टिनेशन की तरफ आता हूं. अब उस एम्बेडेड HTML को सपोर्ट कौन करता है? अब इस एम्बेडेड HTML को मैं ईमेल पर किसी को शेयर कर दूं, देन इट विल नॉट वर्क, करेक्ट. बट इस एम्बेडेड HTML को अगर मैं किसी भी प्लेटफॉर्म, स्वयं, मूडल, कोई भी प्लेटफॉर्म पे अपलोड करूंगा, देन इट विल वर्क, करेक्ट. तो दो टाइप्स हो गए कि मुझे ये मिल कहां से रहा है और ये वर्क कहां करेगा. नॉट एवरीवेयर इट विल वर्क, इट विल, बट डेफिनेटली इट विल वर्क ऑन एनी प्लेटफॉर्म. The advantage of this embedded code is, see, अगर मैं YouTube की वीडियो को URL के थ्रू शेयर कर दूं, जब स्टूडेंट उस URL को क्लिक करेंगे होगा क्या? कंप्लीट YouTube पेज ओपन हो जाएगा. Property of URL is always redirecting to the original source. एक कंप्लीट URL YouTube पेज ओपन हो गया. अब हुआ क्या? The attention has been shift from my portal to the YouTube. Now it's very rare chance student come back to the my portal. अब वो YouTube पर ही कुछ और वीडियो देखना शुरू कर देंगे, सजेस्टेड वीडियो ढूंढना शुरू कर देंगे. इट्स रेयर चांस कि वो अब मेरे वापस पोर्टल पर आएंगे. दैट इज अ डिसएडवांटेज अगेंस्ट द URL. बट अगर मैं उस वीडियो का एम्बेडेड कोड लूं और Moodle पे लगाया, अब मेरे ही प्लेटफॉर्म पर वीडियो वहीं चलेगी. अब रीडायरेक्शन नहीं होगा. जैसे गूगल फॉर्म मेरे Moodle के अंदर आ गया था, राइट, सेम में मेरी वीडियो वहीं आ जाएगी, तो रीडायरेक्शन नहीं होगा. सो आई कैन बाउंड माय स्टूडेंट ऑन माय प्लेटफॉर्म, अटेंशन शिफ्ट नहीं होगी उनकी. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ द एम्बेडेड कोड. इसको आप यूज कर सकते हो. तो बहुत सारा एम्बेडेड कोड कैसे यूज करना है प्रैक्टिकली, जो मैंने ट्यूटोरियल आपको शेयर किया है उसमें आपको मिल जाएगा कि प्रैक्टिकली Moodle पर कैसे कॉपी पेस्ट, एग्जैक्ट स्टेप्स हैं पूरे, कैसे उसको यूज करना है. जस्ट फॉलो दैट वन, यू विल गेट इट हियर. Yes, anyone else have any queries? It's approx time हो चुका है, so I'd just request Ms. Swati to give a formal vote of thanks to Dr. Bishla. Yes, ma'am, thank you. So a very warm and graceful afternoon to one and all present here. On the behalf of entire SSCCM family, I would like to express my sincere gratitude towards the prominent speaker of the day, Dr. Deepak Bishla ji, who spared time from his busiest schedule to grace this FTP. Today we had an opportunity to hear your thoughts, his own ideas and elegance of explanation of everything, be it related to the content creation using OERs, plagiarism management tools, free open softwares, cloud-based softwares, or cyber awareness. I need to mention my deepest sense of appreciation. I hope the knowledge imparted by you is surely going to help us all in the future. Also, I would like to extend my deepest gratitude towards all the participants, the staff of the college, and the entire organizing team. Thank you so much, everyone. Thank you, Swati ma'am. Thank you, Dr. Bishla. We call it a day. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you so much.